روشنی میرے سامنے آئمہ کو زیادہ ڈیفینڈ نہیں کرنا. مجھے لگتا تم اپنی بہن کو جانتی نہیں ہو. روشنی تم مسلسل اسے ڈیفینڈ کر رہی ہو. بہتر ہوگا اس بات کو یہی ختم کر دو, ورنہ میں جو کروں گا نا وہ اس کا وجی بھائی سے ہمدردیاں بٹورنا, سہارا لینا. وہ میری بہن ہے وقار. تو سمجھاؤ اپنی بہن کو کہ وجی بھائی سے اتنا کلوز مت ہو. میں اس بارے میں آپ سے اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی, آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے. اس کا کافی دینا وجی بھائی کو کیا گناہ ہو گیا؟ یا پھر آپ فہمینہ جی کا غصہ میری بہن پہ اتار رہے ہیں؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں غلط بات پر کبھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتی وقار. اس نے ایسا کیا کر دیا جو آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے وقار؟ مجھے بھی تو پتہ چلے. تم نہیں دیکھ پا رہی روشنی, لیکن میں نے دیکھا ہے. اسے شہیر نہ مل سکا تو اس کا مطلب وجی بھائی کے ساتھ, کہ وجی بھائی سے قربت سے اسے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ رئیس ہیں. آدھی رات کو اسے وجی بھائی کے ساتھ. میں نہیں جانتی اپنی بہن کو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ روشنی وہی جو سچ ہے, لیکن روشنی وہ بال بچے والے ہیں. سمجھاؤ آئمہ کو. وقار پلیز. اس کا اچھا برا میں سب جانتی ہوں. کلوز ہونا کچھ آکورڈ نہیں لگ رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں؟ اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے یہ تو سوچتے تھے کہ وہ کس کی بہن ہے, مگر پتہ تو چلے کہ مسئلہ کیا ہے. چاندی کا پل. دو پہاڑوں کے درمیان ایک تیز بہنے والا دریا تھا. اس دریا نے دو گاؤں کو ایک دوسرے سے الگ کر رکھا تھا. برسوں سے لوگ ایک پرانے لکڑی کے پل کے ذریعے آتے جاتے تھے, مگر ایک طوفانی رات وہ پل ٹوٹ گیا. پل ٹوٹنے کے بعد دونوں گاؤں کا رابطہ ختم ہو گیا. بچے اسکول نہ جا سکتے تھے, بیمار لوگ اسپتال نہیں پہنچ پاتے تھے اور تجارت بھی رک گئی. اسی علاقے میں 16 سالہ اسامہ رہتا تھا. اس نے بزرگوں سے کہا اگر ہم سب مل کر کام کریں تو نیا پل بنا سکتے ہیں. کچھ لوگ ہنسنے لگے, اتنا بڑا پل ایک لڑکا کیسے بنائے گا؟ اسامہ نے اگلے ہی دن کام شروع کر دیا. وہ روز پتھر جمع کرتا, لکڑیاں لاتا اور انجینئروں سے مشورہ لیتا. آہستہ آہستہ گاؤں کے نوجوان, پھر بزرگ اور آخرکار دونوں گاؤں کے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے. مہینوں کی محنت کے بعد ایک مضبوط پل تیار ہو گیا. جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی تو وہ چاندی کی طرح چمکتا, اسی لیے لوگوں نے اس کا نام چاندی کا پل رکھ دیا. افتتاح کے دن ایک بزرگ نے اسامہ سے پوچھا, تمہیں کبھی ڈر نہیں لگا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے؟ اسامہ مسکرایا اور بولا, ڈر تو تھا, مگر میں نے سیکھا کہ بڑے کام کبھی ایک آدمی نہیں کرتا بلکہ مل کر کیے جاتے ہیں. اس پل نے صرف دو گاؤں کو نہیں ملایا بلکہ لوگوں کے دل بھی جوڑ دیے. اب ہر سال دونوں گاؤں کے لوگ مل کر اس پل کی دیکھ بھال کرتے اور نئے درخت بھی لگاتے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اتحاد کی طاقت کو یاد رکھیں. سبق: اتحاد, تعاون اور مشترکہ محنت وہ پل ہیں جو ناممکن فاصلے بھی ختم کر دیتے ہیں. چاندی کا پل. دو پہاڑوں کے درمیان ایک تیز بہنے والا دریا تھا. اس دریا نے دو گاؤں کو ایک دوسرے سے الگ کر رکھا تھا. برسوں سے لوگ ایک پرانے لکڑی کے پل کے ذریعے آتے جاتے تھے, مگر ایک طوفانی رات وہ پل ٹوٹ گیا. پل ٹوٹنے کے بعد دونوں گاؤں کا رابطہ ختم ہو گیا. بچے اسکول نہ جا سکتے تھے, بیمار لوگ اسپتال نہیں پہنچ پاتے تھے اور تجارت بھی رک گئی. اسی علاقے میں 16 سالہ اسامہ رہتا تھا. اس نے بزرگوں سے کہا اگر ہم سب مل کر کام کریں تو نیا پل بنا سکتے ہیں. کچھ لوگ ہنسنے لگے, اتنا بڑا پل ایک لڑکا کیسے بنائے گا؟ اسامہ نے اگلے ہی دن کام شروع کر دیا. وہ روز پتھر جمع کرتا, لکڑیاں لاتا اور انجینئروں سے مشورہ لیتا. آہستہ آہستہ گاؤں کے نوجوان, پھر بزرگ اور آخرکار دونوں گاؤں کے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے. مہینوں کی محنت کے بعد ایک مضبوط پل تیار ہو گیا. جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی تو وہ چاندی کی طرح چمکتا, اسی لیے لوگوں نے اس کا نام چاندی کا پل رکھ دیا. افتتاح کے دن ایک بزرگ نے اسامہ سے پوچھا, تمہیں کبھی ڈر نہیں لگا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے؟ اسامہ مسکرایا اور بولا, ڈر تو تھا, مگر میں نے سیکھا کہ بڑے کام کبھی ایک آدمی نہیں کرتا بلکہ مل کر کیے جاتے ہیں. اس پل نے صرف دو گاؤں کو نہیں ملایا بلکہ لوگوں کے دل بھی جوڑ دیے. اب ہر سال دونوں گاؤں کے لوگ مل کر اس پل کی دیکھ بھال کرتے اور نئے درخت بھی لگاتے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اتحاد کی طاقت کو یاد رکھیں. سبق: اتحاد, تعاون اور مشترکہ محنت وہ پل ہیں جو ناممکن فاصلے بھی ختم کر دیتے ہیں. چاندی کا پل. دو پہاڑوں کے درمیان ایک تیز بہنے والا دریا تھا. اس دریا نے دو گاؤں کو ایک دوسرے سے الگ کر رکھا تھا. برسوں سے لوگ ایک پرانے لکڑی کے پل کے ذریعے آتے جاتے تھے, مگر ایک طوفانی رات وہ پل ٹوٹ گیا. پل ٹوٹنے کے بعد دونوں گاؤں کا رابطہ ختم ہو گیا.
बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, इसीलिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता, बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, इसीलिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता, बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, इसीलिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता, बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे,
इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, उसी लिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता, बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, उसी लिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता, बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, उसी लिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता, बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए।
महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, इसीलिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा? उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, इसीलिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा? उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, इसीलिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा? उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, इसीलिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे?
उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, इसीलिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे। उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, इसीलिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे। उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, इसीलिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे। उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए।
अब हर साल दोनों गांव के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, इसीलिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता, बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, इसीलिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता, बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता ख़त्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, इसीलिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता, बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल।
दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता खत्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज पत्थर जमा करता, लकड़ियां लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, उसी लिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता, बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता खत्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज पत्थर जमा करता, लकड़ियां लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, उसी लिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता, बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता खत्म हो गया। बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज पत्थर जमा करता, लकड़ियां लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की मेहनत के बाद एक मजबूत पल तैयार हो गया। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो वो चांदी की तरह चमकता, उसी लिए लोगों ने इसका नाम चांदी का पल रख दिया। इफ्तिताह के दिन एक बुजुर्ग ने उसामा से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम नाकाम हो जाओगे? उसामा मुस्कुराया और बोला, डर तो था, मगर मैंने सीखा कि बड़े काम कभी एक आदमी नहीं करता, बल्कि मिलकर किए जाते हैं। इस पल ने सिर्फ दो गांवों को नहीं मिलाया, बल्कि लोगों के दिल भी जोड़ दिए। अब हर साल दोनों गांवों के लोग मिलकर इस पल की देखभाल करते और नए दरख्त भी लगाते ताकि आने वाली नस्लें भी इत्तेहाद की ताकत को याद रखें। सबक, इत्तेहाद, ताउन और मुश्तरका मेहनत वो पल हैं जो नामुमकिन फासले भी ख़त्म कर देते हैं। चांदी का पल। दो पहाड़ों के दरमियान एक तेज बहने वाला दरिया था। इस दरिया ने दो गांवों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। बरसों से लोग एक पुराने लकड़ी के पल के जरिए आते जाते थे, मगर एक तूफानी रात वो पल टूट गया। पल टूटने के बाद दोनों गांवों का राब्ता खत्म हो गया।
बच्चे स्कूल ना जा सकते थे, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे और तिजारत भी रुक गई। उसी इलाके में 16 साला उसामा रहता था। इसने बुजुर्गों से कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो नया पल बना सकते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, इतना बड़ा पल एक लड़का कैसे बनाएगा। उसामा ने अगले ही दिन काम शुरू कर दिया। वो रोज़ पत्थर जमा करता, लकड़ियाँ लाता और इंजीनियरों से मशवरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता गांव के नौजवान, फिर बुजुर्ग और आखिरकार दोनों गांव के लोग इसके साथ शामिल हो गए। महीनों की